recording on. Yesterday, that what is the acid base theories which was proposed by Arrhenius theory. It is a protonic theory. Then we had seen the second theory, Lowry and Bronsted theory. Lowry and Bronsted theories are proposed by Lowry and Bronsted theory is known as protonic theory, है ना. उसमें एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर वेयर एज बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर. एंड लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी से एक और कॉन्सेप्ट हमने समझा था, वो था एम्फोटेरिक नेचर, आई एम सॉरी, वो था कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. Conjugate acid base pair that we get from the concept of Lowry and Bronsted theory. क्योंकि conjugate acid base pair is obtained by proton transfer और Lowry Bronsted theory भी protonic theory है. तो an acid gives its conjugate base by donating proton. A base gets its conjugate acid by accepting a proton. So that's why conjugate acid base pair differ by a proton number. Then the third theory we have taken, that was Lewis theory. Lewis theory is an electronic theory, and according to this theory, acids can share or accept a pair of electron, whereas bases can accept or share. Bases can donate or share a electron pair. So that was Lewis theory for acids and bases. And also we had seen one concept, that is amphoteric nature of water. Water on reaction with acid behave as an base, and the same water on reaction with base behaves as an acid. तो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, H2O को एक बार HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2O बेस बन जाएगा, और उसी H2O को NH3 के साथ रिएक्ट करेंगे अमोनिया के साथ, तो वो H2O एज अ एसिड रहेगा. दिस इज according to ionic theory we can explain amphoteric nature of water. Now today we will see one ionization of acids and bases. In fact ये ionization of acids and bases हमने पहले देख लिया है. Ionization of acids and bases. As per the sequence of our notes, this article comes ionization of acids and bases. और ये तो हमें पता है कि acids and bases, strong acids and strong bases, strong acids and strong bases, they ionizes on है strong acids and strong bases ionizes almost completely, ionizes almost completely. और उसकी रिएक्शन भी हमने देखा था, बहुत आपने एग्जाम्पल भी बता दिए थे, जैसे HCl और KOH या HNO3 ले लेते हैं. HNO3 is a strong acid, KOH is a strong base. ये जब आयोनाइज होंगे वाटर में, आयोनिक मीडियम चाहिए ना आयोनाइजेशन के लिए, तो H2O ionization we get H plus ion in aqueous medium plus NO3 minus 1. तो they ionizes almost completely. That's why हम क्या सिंगल हेडेड एरो दिखा रहे हैं, है ना, नहीं तो रिवर्सिबल दिखाते थे. अब KOH is a strong base, strong base, ये strong acid है, तो it ionizes into K positive aqueous plus OH negative aqueous. तो यहाँ भी dissociation almost completely. तो we get complete ionization
of strong acids and strong bases. वैसा ही weak acids और weak bases ये भी हमने पढ़ा था और इसके एग्जाम्पल भी आपने एक्सप्लेन किए थे. जैसे वीक एसिड के लिए अभी एग्जाम्पल ले लूँ मैं. फॉर्मिक एसिड HCOOH is a weak acid. When it is dissolved in water, it ionizes into acetate ion or formate ion plus hydrogen ion. Formate ion and hydrogen ion. But their dissociation or ionization is less than 5%. Less than 5% ionizes. Weak base का standard example ammonium hydroxide. When dissolved in water, we get ammonium ion, aqueous medium, and hydroxyl ion and OH ion in aqueous medium. So they are weak electrolyte, weak acid and weak base ionizes to smaller extent. तो ये आयोनाइजेशन की रिएक्शन आप अपने नोट्स में लिख लेंगे. उस नोट्स में एक छोटा सा करेक्शन देखा था मैंने अभी, है ना. और ये आयोनाइजेशन में एग्जाम्पल के लिए स्पेस है पेज नंबर 3 में. डिसोसिएशन के जस्ट ऊपर देखेंगे, यहाँ वीक, ये वीक लिखना था, यहाँ स्ट्रॉन्ग है, यहाँ वीक होना चाहिए, है ना. तो वो छोटा करेक्शन आप करेंगे पेज नंबर 3 में और ये एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज डिसोसिएशन कांस्टेंट. हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ लिया. अब हम पढ़ना चाह रहे हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट. डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स एंड बेसिस. अब कौन से एसिड्स और बेसिस का डिसोसिएशन कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं? फॉर वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, है ना. फॉर वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस. स्ट्रॉन्ग का हम डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं निकालते. क्यों नहीं निकालते? क्योंकि आउट ऑफ 100 99.99% तो डिसोसिएट हो जाता. तो क्या कांस्टेंट मिलेगा उसका? लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या देखते हैं कि ये जो डिसोसिएशन हो रहा है, एक सेकेंड, ये यहाँ पर इसको इक्विलिब्रियम साइन देना पड़ेगा वीक वाले इसमें. वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस में क्या देखते हैं? दैट द डिसोसिएशन इज लेस देन 5%. तो आउट ऑफ परसेंट बोला तो 100 में से कोई एसिड 3% हो जाएगा. 100 में से कोई है तो 0.25% हो जाएगा. तो इट इज आउट ऑफ 100, है ना. तो इसीलिए हम जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो किसका फाइंड आउट कर सकते हैं? वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस के लिए. स्ट्रॉन्ग तो वैसे भी उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑलमोस्ट 1 आना चाहिए. आ रहा है ध्यान में आप सभी के? तो कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? तो फॉर वीक एसिड एंड फॉर वीक बेस बहुत इजी है. let us consider a weak acid. Consider a weak acid HA dissolved in water. It dissociates feebly or dissociates to smaller extent, जिसको हम वर्ड बोलते हैं फीबली, है ना. फीबल मीन्स वीक, है ना. फीबल बहुत ही फीबल है वो, है ना. बॉन्ड बहुत फीबल है यानी वीक काइंड है, तो बहुत ही कम डिसोसिएट होता है. अब ये HA हमने लिया, वीक एसिड है,
वाटर में इसे डिसॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, H प्लस आयन एक्वस प्लस A नेगेटिव आयन एक्वस। अब लॉ ऑफ मास एक्शन जब हम अप्लाई करें, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगा सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K is given as, जब इक्विलिब्रियम रहेगा तभी लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू, जो फंडा है उसको लिखता हूं मैं। फंडा क्या बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज व्हाट एज पर द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लेट अस अप्लाई टू दिस वीक एसिड। तो K is a equilibrium constant और dissociation constant है ना। K is equilibrium constant. K is equal to concentration of product. प्रोडक्ट में क्या क्या है आपके पास में, H प्लस आयन और A नेगेटिव आयन, और रिएक्टेंट में क्या है आपके पास में HA। अच्छा, यहां पर एक करेक्शन छोटा मैं कर देता हूं, HA प्लस H2O ऐसा लिख देता हूं। तो रिएक्टेंट में आपके पास आ गया HA एंड H2O। एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K is equal to concentration of product upon concentration of reactant. This is what we get. Now, the concentration of water always remains constant because it is taken in large excess amount. As water is present in excess amount as compared to weak acid. तो यहाँ हम लिखेंगे concentration of H2O is taken as constant. Therefore, K is equal to, क्या आ जाएगा, concentration of H plus ion into concentration of A negative ion upon concentration of HA into constant. H2O concentration is constant because, reason भी लिख देते, because it is present in excess amount. तो थोड़ा सा अगर यूज भी कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वाटर के कॉन्सेंट्रेशन पे। तो अब क्या दिख रहा है हमको यहाँ पर कि H कॉन्सेंट्रेशन इंटू A नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HA कॉन्सेंट्रेशन इंटू कांस्टेंट। K भी कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम, तो ये दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। K इंटू कांस्टेंट is equal to another constant, है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू कांस्टेंट is another constant denoted by Ka and known as dissociation constant, known as dissociation constant for weak acid. A जो हमने लिया है वो एसिड के लिए, known as dissociation constant, known as dissociation constant for weak acid HA. So the product of two constant will be another constant, and this constant is known as dissociation constant for weak acid HA. Therefore,
what we can write Ka is equal to, बोलेंगे मुझे अभी Ka is equal to concentration of H plus 1 and concentration of A minus 1 upon concentration of HA. आ गया ये हमारा इक्वेशन. दिस इक्वेशन represents the dissociation constant for weak acid. So this equation represents dissociation constant for weak acid. Okay, now dissociation constant for weak acid. ओके तो आपके नोट्स में भी आप देखेंगे तो यहाँ नोट्स में हमें दिख रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. तो ये वीक एसिड के लिए मैंने डिराइव कर लिया. फाइनल इक्वेशन मिला Ka is equal to concentration of H plus ion into concentration of A negative ion upon concentration of Ha. Similarly, we can get dissociation constant for weak base. Dissociation constant for weak base. For weak base. और weak base को डिनोट करते हैं BOH से. तो इसका भी डेरिवेशन बस ऐसे ही चलेगा. अब इतना सारा भी लिखने की जरूरत नहीं है अपने को. तो weak base, let us consider weak base BOH which dissociate to smaller extent as follow. तो क्या मिलेगा बेटा? डिसोसिएशन BOH plus H2O will give B positive aqueous plus OH negative aqueous. सही है. Now applying law of mass action. Applying law of mass action. So equilibrium constant K is equal to concentration of B positive ion into concentration of OH negative ion upon concentration of BOH into concentration of H2O. But concentration of BOH, that is always taken as constant. Therefore K is equal to, आ गया, लिख सकेंगे आप, K is equal to concentration of B positive ion into OH negative ion concentration upon concentration of BOH into constant. अब फिर से यही लॉजिक, K into constant, तो क्या होगा? But K into constant is another constant denoted by KB. And it is known as dissociation constant. Dissociation constant for क्या लिखेंगे बेटा? Dissociation constant for weak base. तो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा ये बोलेंगे मुझे. फाइनल इक्वेशन KB is equal to, आगे आपके दोनों डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वेशन. KB is equal to
concentration of B positive ion into OH negative ion upon concentration of BOH, where Kb is known as dissociation constant for weak base and Ka is known as dissociation constant for weak acid. तो वीक एसिड का Ka मिल गया डिसोसिएशन कांस्टेंट, वीक बेस का मिल गया Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये दो छोटे से डेरिवेशन हमने कर ली है। अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, एक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, और दूसरा आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक एसिड और वीक बेस के लिए अल्फा ही एक ही नोटेशन है, लेकिन डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड का Ka और डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक बेस का Kb। सही है, Ka बेटा किसके लिए है, वीक एसिड, Kb किसके लिए है, वीक बेस। और वीक एसिड का ये चैप्टर में हम जनरल फॉर्मूला एसिड का Ha लेने वाले हैं और बेस का BOH लेने वाले हैं। तो उसी के हिसाब से Ka का इक्वेशन बन जाएगा। अब Ka एसिड है, Ha, तो इसका आयोनाइजेशन दिखा दिया, प्रोडक्ट ऑफ देयर आयंस। वीक बेस BOH है, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, उस प्रोडक्ट ऑफ देयर आयंस। तो आप Ka Kb दोनों आसानी से याद रख सकेंगे। ठीक है, तो ये आपको अपने नोट्स में कंप्लीट करना है। फिल इन द ब्लैंक है, तो वहाँ कुछ स्पेस कम ज़्यादा होगी, तो आप ब्लैंक गिवन स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना, और ये सारी इंफॉर्मेशन बेटा आना चाहिए उसमें। इसीलिए अपने नोट्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल लेके बैठना है, और ये सारे डेरिवेशंस आपको करते जाना है साथ साथ में, है ना। सिर्फ लेक्चर नहीं सुनना है, आपको अपने साथ में नोट्स भी रखने हैं। अब ये सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ लिख दूँ, जैसे हमने देखा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, तो वो डिनोट करते हैं अल्फा से। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड Wa, वीक एसिड Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट काय के लिए बेटा, फॉर वीक बेस, तो वो बनेगा Kb। ये आगे इंफॉर्मेशन। और स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट ये हमको पता है, और वीक एसिड काय से डिनोट करना है हमको, Ha से, और वीक बेस काय से डिनोट करना है हमको, BOH से। तो ये भी एक नोटेशन के लिए हम याद रखेंगे। Now the next point comes is, as per our syllabus, Ostwald's dilution law. Now we have to see another aspect, Ostwald's dilution law. Ostwald's dilution law. ये लॉ का क्या स्टेटमेंट है, ये हम पहले डिराइव कर लेंगे और फिर ये स्टेटमेंट को लिखेंगे हम। स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, आपके नोट्स में स्टेटमेंट लिखा है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट is inversely proportional to the square root of its concentration or directly proportional to the square root of its volume. अब मैंने बोल दिया, आपके पास लिखा भी है, लेकिन इसको डिराइव करना है। अब ये ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इट गिव्स, आप याद रखने के लिए, इट गिव्स द रिलेशनशिप, इट गिव्स द एक्सप्रेशन which is the relationship between degree of dissociation काय से डिनोट कर रहे हैं, अल्फा से, and dissociation constant. So
Oswald's dilution law, it gives the relationship between degree of dissociation alpha and dissociation constant. Dissociation constant can be Ka or Kb for weak acid and weak base. For weak acids or weak bases. So this is what Oswald's dilution law. इसका statement है, ऐसा ही है statement, the degree of dissociation of a weak acid or weak base is inversely proportional to the square root of its initial concentration C, or degree of dissociation of a weak electrolyte is directly proportional to the square root of its volume V. तो वो हमें पूरा डेरिवेशन करने का है. अभी मृणांक कितना टाइम बाकी है बेटा? सर अभी टाइमर आने का. अयो रामा, 10-15 मिनट होंगे अभी, क्योंकि अभी अपने पास 12-13 मिनट्स है. 12 to 13 मिनट्स है. हाँ, क्योंकि 5:15 शुरू किया है, 5:45 हो गया है ये, है ना? तो अभी अपन 5:17 को शुरू किया था मैंने. हाँ, 6:17 को शुरू किया था. हाँ, तो 5:57 तक खत्म हो सकता है. 56 हो सकता है. अभी 5:46 हो गया है ना. मतलब पकड़ लो 10-12 मिनट. अरे आज जाने दे, अभी इसको कल डेरिवेशन पढ़ाऊंगा मैं अभी. ये ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ जो है ना, इसका डेरिवेशन खत्म नहीं होगा आज अपना, और फिर से कल चालू करना पड़ेगा. और मुझे कैसा है वो डेरिवेशन, साइमल्टेनियसली 2 डेरिवेशन पढ़ाने पड़ेंगे. एक अल्फा और के ए के साथ में, और दूसरा अल्फा और के बी के साथ में. साइमल्टेनियस 2 डेरिवेशन हमारे चलेंगे, वो है ना. आप अपने नोट्स में भी देखेंगे तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो. ओके. सो व्हाट वी सी हियर फर्दर, अरे वेयर, अरे यार ये रिकॉर्डिंग गई कहाँ पर? मृणांक, इट इज देयर. यस सर.